Very good afternoon, students. Now we comes on a third lecture of Fourier transform. In previous lecture, we have seen a Fourier transform, and Fourier cosine transform, Fourier sine transform, and also the problems on that. And now we comes on Fourier integral. So there are some standard result of that Fourier integral formula. So we have to use that in our problems. For the f of x, if we have to get the Fourier integral for f of x, then that is equals to 1 by pi. Integral is from 0 to infinity minus infinity to infinity f of t cos lambda t minus x dt d lambda. Now it's a double integration. So outer integral is from d lambda, that is for lambda, and inner integral is for function t, which is called as a Fourier integral form of f of x. अब डबल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है, बिकॉज वी हैव सीन डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन इन M2. Then next is a Fourier cosine integral form. F of x is equals to 2 by pi. Integral is from 0 to infinity. There is a cos lambda x 0 to infinity. F of t cos lambda t dt d lambda. So that is called as a Fourier cosine integral. यहाँ पे क्या रहता है? There is a term of cos lambda x cos lambda t. Along with that f of t, and limits are from 0 to infinity. So remember that t, and here is a minus infinity to infinity, and in place of that two terms there is a cos lambda of t minus x. So when you remember that formula, you have to compare, so you can easily remind that. If you consider the third formula, f of x is equals to 2 by pi. Integral is from 0 to infinity sin lambda x, limits from 0 to infinity f of t sin lambda t dt d lambda. Simply cos की जगह यहाँ sin है, and that is called as a Fourier sine integral form of f of x. And now we can express one function in the form of Fourier integral. Here I have written that problem. f of x is equals to 1 for mod x is less than equals to 1. अब इसका मीनिंग रहता है, that means when minus 1 is less than equals to x is less than equals to 1. When x is lies in between minus 1 to 1. And mod x is greater than 1, that means यहाँ की रिवर्स कंडीशन आ जाती है नीचे. When x is less than or equals to minus 1, and when x is less than minus 1, and when x is greater than 1. So for that function have the 0 value. That means the function f of x is lies in between that interval, and it has a particular value. For that x is lies in between minus 1 to 1, it is a 1, and f of x 0 when x is less than minus 1 and when x is greater than 1. And we have to express that f of x in the form of Fourier integral, and also we have to evaluate that next result. So first we write that, यहाँ पे फंक्शन तो है, पर एक बार और लिख लेते हैं हम आंसर में. So f of x we have given here is equals to 1. That mod of x is less than equals to 1. Here is a minus 1 is less than equals to x is less than equals to 1, and that is equals to 0 for mod of x is greater than 1, x less than minus 1 for or x greater than 1. ये कंडीशन है उसकी. अब फॉर्मूला लिख लेते हैं. फूरियर इंटीग्रल फॉर एफ ऑफ एक्स, अभी हमने जो यहाँ पे राइट डाउन किया है, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर फूरियर इंटीग्रल. सो वी राइट डाउन दैट एज इट इज. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हियर 1 by pi. Integral is from 0 to infinity, then minus infinity to infinity. Here is a f of t cos lambda t minus x dt d lambda. Okay. Now that f of t is nothing but our f of x. It doesn't matter कि यहाँ पे आपने f of t लिया या f of x लिया, because these limits are definite integral के फॉर्म में है. We have given the limits here integral, so उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पैरामीटर क्या है. So here is a f of x, we have given the value of that is equals to 1 when x is lies in between minus 1 to 1. मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो f of x को पॉजिटिव वैल्यू और नॉन जीरो वैल्यू कब है? when that x is lies in between minus 1 to 1. उसके आगे या उसके पीछे दैट फंक्शन हैज अ वैल्यू 0. सो सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये इंटरवल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा. आउटर इंटीग्रल तो एज इट इज रहेगा बिकॉज इट इज फॉर अ डी लैम्डा. और इनर इंटीग्रल जो एफ ऑफ टी के लिए रहता है, यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एक्स है,
तो उसके लिए वैल्यू सिर्फ -1 to 1 के लिए हमारे पास है, एंड दैट इज अ 1. So that minus infinity to infinity converts into -1 to 1. So here we write f of t as a 1 and that function as it is, that is cos lambda of t minus x dt. So hope you understand that. यहाँ पे इंटरवल इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपली -1 to 1 के लिए ही f of x की वैल्यू 1 है, बाकी के लिए वो 0 आती है. So that is equals to 1 by pi. Here integral is from 0 to infinity d lambda as it is. Now if you consider the integration of cos of that, integration cos का क्या रहेगा? Yes, integration of cos is a sin आ जाएगा. So sin lambda of t minus x with respect to t कर रहे हैं हम, तो जो भी t का कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा. sin lambda of t minus x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे lambda आ जाएगा. And limits are from -1 to 1. तो यहाँ पे आगे आ जाते हैं हम. 1 by pi इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to infinity d lambda by lambda as it is. यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे? सो फर्स्ट टाइम t इज रिप्लेस बाय 1, तो यहाँ पे आ जाएगा sin lambda of 1 minus x. सेकेंड टाइम माइनस लोअर लिमिट sin lambda of -1 minus x ब्रैकेट कंप्लीट. उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दैट इज 1 by pi इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to infinity. ये d lambda by lambda as it is. अब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकलेंगी. -1 minus x, इफ यू टेक अ माइनस आउट ऑफ दैट ब्रैकेट, as we know that sin of minus theta is nothing but a minus sin theta. तो ये माइनस साइन अगर बाहर आ गई तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दैट इज अ साइन लैम्बडा ऑफ 1 minus x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन लैम्बडा ऑफ 1 plus x ब्रैकेट कंप्लीट. अब आगे की तरफ आ जाते हैं. सो वी कंटिन्यू ऑन दैट साइड. पहले तो ये टर्म हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो आई हैव रिटन दैट टर्म एज इट इज. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर यहाँ पे लैम्बडा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स, उसके बाद प्लस यहाँ पे होगा साइन लैम्बडा प्लस लैम्बडा. अब इसका एक्सपेंशन लेंगे, सो इट बिकम अ साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स प्लस कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स. ये तो हो गए फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपेंशन. देन प्लस फॉर अ सेकंड ब्रैकेट साइन लैम्बडा, यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पे माइनस रहेगा. साइन लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स माइनस कॉस लैम्बडा साइन लैम्बडा. सिंपली फर्क यहाँ पे माइनस और प्लस का है, बाकी टर्म तो एज इट इज आएगी. बट जो अब माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, बिकॉज देयर इज अ प्लस. अब टर्म कौन सी कैंसिल होंगी? यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, सो बोथ टर्म गेट कैंसिल एंड इट बिकम अ ट्वाइस. तो ये टर्म 2 times आ जाएंगी. दैट इज 2 into साइन लैम्बडा कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स. यहाँ पे हमने एक्सपेंशन किया है साइन ए माइनस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में. So now we continue on that side and therefore f of x is equals to, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे. So 2 तो बाहर ले लेते हैं as it is constant. So 2 by pi यहाँ पे इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to infinity. वो जो टर्म है वो इस फॉर्म में आ गए, साइन लैम्बडा कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स और डिनोमिनेटर में लैम्बडा. तो यही हमें प्रूव करना था कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल. अब यहाँ पे 2 by pi एक्स्ट्रा टर्म है, सो इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं. और therefore what we get, integral is from 0 to infinity sin of lambda cos of lambda x upon lambda, that is equals to nothing but ये 2 by pi अगर इधर चले गए तो ये pi by 2 हो जाएंगे और यहाँ पे f of x. अब हमारे पास f of x की 2 वैल्यूज है. हमें पता है कौन सी वैल्यू है, एक 1 है और एक 0 है. अब अगर यहाँ पे हमने pi by 2 into 1 कर दिया फॉर द इंटरवल -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1, तो वो हो जाएगा सिंपली पाई बाय 2. अगर दूसरे इंटरवल के लिए हमें पता है कि दूसरे
इंटरवल की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, सो पाई बाय 2 इंटू 0 वो आ जाएंगे 0 फॉर द इंटरवल मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स व्हेन एक्स इज लेस देन -1 और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन, सो ये आ गई उसकी दोनों वैल्यूज ऑफ दैट इंटीग्रल. फॉर दैट इंटरवल mod x is less than or equals to 1 it is a pi by 2, and for the interval mod x is greater than 1 it is equals to 0. अब अगर थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ पे है, कौन से इंटरवल में है, इन बिटवीन -1 to 1 when that x is less than -1 and when x is greater than 1. But for a particular point x is equals to 1 there is a discontinuity और उसके लिए भी हमें वैल्यू निकालनी है. अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी टेक द एवरेज ऑफ दैट टू टर्म्स. जैसे फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 है, सो फॉर अ पर्टिकुलर एट अ पॉइंट mod of x is equals to 1. How we get that value of f of x? Here is equals to, we have to take an average. First f of x की value 1 और second 0 divided by 2 and that is equals to 1 by 2. That is the value of f of x. So I write here f of x. F of x is equals to average of that two value 1 plus 0 divided by 2 and that is equals to 1 by 2. अब ये वैल्यू हो गई f of x की at mod x is equals to 1 के लिए. So how we write that integral for that particular mod x is equals to 1, and therefore integral is from 0 to infinity, that is the sin lambda cos of lambda x by lambda d lambda. यहाँ पे I didn't have written d lambda, you have to write down also. Here is the d lambda and that is equals to pi by 2 into f of x है हमारे पास, but for a particular value that is for mod of x is equals to 1, जो अभी हमने निकाली है, that f of x is nothing but a 1 by 2, so यहाँ पे आ जाएंगे pi by 2 into 1 by 2, so that is nothing but a pi by 4. So in this way we calculate the values of that integral at all points for a x, when mod x is less than equals to 1, when mod x is greater than 1 and when particular for mod x is equals to. So in this way we get a Fourier integral for that particular function f of x. And now for the next problem we see Fourier sine integral as well as cosine. Now student, it comes on to problem that is for a Fourier sine and Fourier cosine integral. One by one we see the problems on that. यहाँ पे जो second problem है, using a Fourier integral show that integral is from 0 to infinity cos omega x upon 1 plus omega square d omega equals to pi by 2 e raised to minus x. अब यहाँ पे हमें दिया नहीं है कि इसको कैसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल और इन टर्म्स ऑफ फूरियर साइन इंटीग्रल. अब अगर यहाँ पे कॉस की टर्म दिख रही है सो ऑब्वियसली इट इज फॉर अ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, और अगर यहाँ पे साइन दिख रहे हैं देन इट इज फॉर अ साइन इंटीग्रल, और अगर दोनों कंबाइन दिख रहे हैं साइन कॉस देन इट इज फॉर अ फूरियर इंटीग्रल. और अगर वहाँ पे डिनोट किया होगा कि सॉल्व फॉर अ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल, सो ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व इट फॉर अ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल. बट यहाँ पे अब कुछ दिया नहीं है, बट यहाँ पे टर्म कॉस के है, सो ऑब्वियसली इट इज फॉर अ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल. फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का यूज करके वी हैव टू शो दैट इंटीग्रल इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स. अब इसका मीनिंग हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दैट इंटीग्रल. मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पाई बाय 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स. यहाँ पे सिंपली हमें प्रूव करने के लिए दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दैट वी हैव टू शो यूजिंग अ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल. ये फॉर्मूला हमारे पास है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का, and we have given the f of x which is in a problem. f of x is equals to pi by 2 into e raised to minus x. so यहाँ पे f of t की रिप्लेस करेंगे हम, यहाँ पे x के फॉर्म में फंक्शन है, so don't worry about that, you have to simply replace x by a t and then we can solve that integral. so यहाँ पे लगे तो एक स्टेप हम कर लेते हैं. यहाँ पे हो जाएगा therefore f of x is equals to यहाँ पे 2 by pi, इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे जो टर्म लैम्बडा की होंगी सिंपली दैट इज द कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा. इनर इंटीग्रल में फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की जगह यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 ई रेज़ टू माइनस एक्स. यहाँ पे सॉरी एक्स यहाँ पे हमने टी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया एफ ऑफ टी, सो ई रेज़ टू माइनस टी. यहाँ पे कॉस ऑफ लैम्बडा टी और यहाँ पे डी. नाउ वी सॉल्व दैट. So f of x is equals to यहाँ पे क्या होगा, f of x is equals to 2 by pi as it is रहेगा, आउटर इंटीग्रल भी as it is रहेगा,
देयर इज फ्रॉम cos लैम्बडा x d लैम्बडा। अब यहाँ पे पाई बाय 2 की टर्म कांस्टेंट है, वो भी हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के। सो ये 2 बाय पाई है और ये पाई बाय 2 है, सो वी टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रल। 2 बाय पाई बाय 2। सो सिंपली यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू माइनस टी कॉस ऑफ लैम्बडा टी dt। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो हमें पता है कि ऐसे इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज़ टू ax cos bx dx। जैसे ही हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि इंटीग्रल e रेज़ टू ax cos ऑफ bx dx इज नथिंग बट e रेज़ टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। ये फॉर्मूला रहता है हमारा for that standard integral and we have to apply for that inner integral here. So यहाँ पे f of x is equals to 2 by pi into pi by 2 both get a cancel। यहाँ पे 0 to infinity, यहाँ पे cos of lambda x d lambda हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a की जगह -1 है और यहाँ पे b की जगह लैम्बडा है, तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू माइनस टी, a की जगह -1 सो -1 स्क्वायर प्लस b की जगह लैम्बडा स्क्वायर इन ब्रैकेट a इज अगेन -1 cos ऑफ लैम्बडा t प्लस लैम्बडा इनटू साइन ऑफ लैम्बडा t ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके, एंड नाउ f of x is equals to integral is from 0 to infinity, here is a cos of lambda x d lambda। यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, e रेज़ टू माइनस टी, here is a 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, here is a माइनस cos ऑफ लैम्बडा t प्लस लैम्बडा इनटू साइन लैम्बडा t, and then we take that curly brace here for that complete term and limit from 0 to infinity। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है कि इंफिनिटी अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे e रेज़ टू माइनस टी है, मतलब e रेज़ टू माइनस टी अगर डिनोमिनेटर में गए तो 1 बाय e रेज़ टू टी हो जाएंगे, एंड व्हेन वी पुट t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इट बिकम अ 1 बाय t। एज इट बिकम अ 1 बाय t 1 बाय इंफिनिटी हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देखा सो दैट इज e रेज़ टू माइनस टी, हियर इज 1 अपॉन e रेज़ टू टी। अगर t के लिए लिमिट हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी इज नथिंग बट 0। सो अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे इसके लिए तो सब टर्म 0 हो जाएंगी। सो cos ऑफ लैम्बडा x d लैम्बडा तो एज इट इज रहेगा, व्हेन वी पुट अपर लिमिट इट बिकम अ 0, 0 इनटू समथिंग इट बिकम अ 0। सो माइनस लोअर लिमिट, अब 0 अगर पुट करेंगे तो e रेज़ टू 0 हो जाएगा हमारा 1। सो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा, इन ब्रैकेट जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 आ जाएगा और cos 0 1, but there is a minus so it become a -1 plus when we put here 0 तो sin 0 is a 0, so here we complete the bracket and we make it a curly brace। so that is equals to integral is from 0 to infinity, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। so यहाँ पे क्या आ जाएगा cos of lambda x d lambda अपॉन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। सो ऐसे फॉर्म में आ रहा है हमारा आंसर। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोग बोलेंगे यहाँ पे तो मैडम लैम्बडा है ओमेगा की जगह, सो वी कैन रिप्लेस द पैरामीटर लैम्बडा बाय ओमेगा, सो वी रिप्लेस और इंटरचेंज दैट लैम्बडा बाय ओमेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एज इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, सो वी रिप्लेस दैट लैम्बडा बाय ओमेगा एंड दैट्स व्हाई वी गेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cos of omega x upon here is a 1 plus omega square d omega, and that is equals to f of x, and f of x is nothing but our pi by 2 into e raised to minus x। so in this way we get its answer of that Fourier cosine integral। in this way we show that result। so hope you understand that। अभी कैन सॉल्व इट, फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू मींस इसकी वैल्यू f of x रहती है, f of x वी पुट हियर
यहाँ पे x के टर्म थी पर यहाँ पे t के फॉर्म में थी, तो डेफिनेट इंटीग्रल होने की वजह से हमने t ही रख दिया, so that become e raised to minus t and then we solve it. And now we comes on a second problem. Now we comes on second problem. Here we have given f of x is equals to 1 when x is lies in between 0 to pi, and that is equals to 0 when x is greater than pi. And we have to express that f of x as a Fourier sine integral. That means हमें यहाँ पे दिया है कि हमें Fourier sine integral के फॉर्म में f of x को एक्सप्रेस करना है, और एक सेकंड रिजल्ट भी हमें यहाँ पे इवेलुएट करना है, दैट इज 0 to infinity 1 minus cos pi lambda upon lambda sin lambda x d lambda. We have to get the value of that. तो जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन इंटीग्रल, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट हमें मिल ही जाएगा. सो फर्स्ट वी राइट दैट Fourier sine integral formula f of x is equals to 2 by pi integral from 0 to infinity f of t sin lambda x d lambda dt. हमारा फंक्शन जो है हमें यहाँ पे डिफाइन किया है f of x, मतलब here is a f of t in that integral, और उसकी वैल्यू 1 है when x is lies in between 0 to pi. अब 0 to pi के लिए फंक्शन की वैल्यू है, बट when x is greater than pi, मतलब pi के बाद when x is varies from pi to infinity, उसके लिए उसकी वैल्यू 0 है. मतलब जब हम 0 to pi कंसिडर करेंगे तभी हमें 1 लेना पड़ेगा. तो हमें पता है कि इनर इंटीग्रल t के लिए रहता है और आउटर इंटीग्रल लैम्बडा के लिए, तो इसको हम लिख लेते हैं दैट इज 2 by pi. हियर इज इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to infinity. यहाँ पे टर्म लिख लेंगे हम दैट इज साइन ऑफ लैम्बडा x, यहाँ पे d लैम्बडा, और आउटर इनर इंटीग्रल में हमारा जो इंटीग्रल है वो स्प्लिट हो जाएगा. एक हो जाएगा हमारा 0 to pi. 0 to pi के लिए f of t की वैल्यू 1 साइन ऑफ लैम्बडा t dt प्लस सेकंड इंटीग्रल व्हेन x इज ग्रेटर देन pi, दैट इज pi to infinity, उसके लिए वैल्यू है 0, दैट इज साइन लैम्बडा t, हियर इज अ dt. अब इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं यहाँ पे कंप्लीट. तो ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग ऑफ दैट 0 to infinity, दैट इज 0 to pi एंड देन pi to infinity. अब pi to infinity के लिए अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 f of t की, सो ऑब्वियसली दैट इंटीग्रल बिकम अ 0, सिंपली यू हैव टू कंसीडर 0 to pi. तो आगे आ जाएंगे हम यहाँ पे. सो वी राइट हियर f of x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 by pi इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity, हियर इज अ साइन लैम्बडा x d लैम्बडा, और यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi, here is a sin of lambda t and here is a dt. And now we can solve that integral here. Sin lambda t का इंटीग्रेशन क्या रहता है, that is a minus cos lambda t. इंटीग्रेशन ऑफ sin lambda t is a minus cos lambda t. तो ये तो टर्म आउटर इंटीग्रल की एज इट इज रहेंगी यहाँ पे. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity sin of lambda x as it is d lambda, and integration of sin lambda t with respect to this, that is a minus cos of lambda t, and coefficient of t, that is a lambda, limits from 0 to pi. So that is equals to 2 by pi as it is here. Integral is from 0 to infinity sin of lambda x d lambda. यहाँ पे हम -1 by lambda बाहर ले लेते हैं, और अब इसको अप्लाई करेंगे हम लिमिट cos lambda t को. So limit जो है वो t में पुट होंगे. When we put here pi, so it become a cos of lambda pi minus when you put a lower limit 0, so cos 0 is nothing but a 1. So ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका आंसर. अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, so that become a 2 by pi. Here is integral is from 0 to infinity. यहाँ पे ये माइनस इन अगर अप्लाई कर दे तो ये माइनस हो जाएंगी टर्म और ये प्लस हो जाएंगी, सो इट बिकम अ 1 minus cos lambda pi into sin lambda x upon lambda. अब अगर ध्यान से देखने को तो यही टर्म आ गई वहाँ पे, यहाँ पे 2 by pi है और यहाँ पे रहता है हमारा f of x. तो हमें तो सिर्फ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, सो वी ट्रांसफर दैट 2 by pi to that side. So it gives integration is from 0 to infinity 1 minus cos of lambda pi sin lambda x upon lambda, and that is equals to 2 by pi. अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे pi by 2 हो जाएगा, so pi by 2 into f of x. अब हमें पता है कि f of x की अगेन 2 वैल्यूज है, एक है 1 और एक है 0.
अब अगर एफ ऑफ एक्स हमने 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू पाई बाय 2 इंटू 1 तो हो जाएगा पाई बाय 2 फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन पाई के लिए। और व्हेन यू पुट अ 0 फॉर एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू 0 हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट अ 0 फॉर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई। So in this way we get both the values for that particular interval of that integral, that is equals to pi by 2 f of x. It is a pi by 2 when f of x is equals to 1 and it is a 0 when f of x is equals to 0. So in this way we get the value of that integral. So hope you understand, बहुत ही easy problem है, cosine integral, sine integral, cosine transform, sine transform, Fourier transform, Fourier integral, and it's a scoring part. So for a practice I will do 2 more problem for you. So these 2 problems for your homework. Using a Fourier integral, show that integral from 0 to infinity sin pi lambda sin lambda x upon 1 minus lambda square d lambda is equals to pi by 2 sin x for 0 to pi and that is equals to 0 for x is greater than pi. जो previous problem हमने देखा है बस उसी की तरह है। अब रहा सवाल कि यहाँ पे फूरियर साइन इंटीग्रल यूज करना है या फूरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर थोड़ा यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में टर्म साइन की है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज योर फूरियर साइन इंटीग्रल। अब आगे देखेंगे फूरियर यूजिंग अ फूरियर इंटीग्रल थ्रू दैट। अब ऐसे फॉर्म में दिया है, यहाँ पे हमें कोई नोट नहीं दिया है कि फूरियर कोसाइन करना है या फूरियर साइन इंटीग्रल से करना है, बट अब इफ यू ऑब्जर्व दैट प्रॉब्लम हियर इज अ cos ओमेगा x अपॉन k स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे cos की टर्म है, सो ऑब्वियसली इट इज फॉर अ फूरियर कोसाइन इंटीग्रल और यहाँ पे साइन की है तो यहाँ पे फूरियर साइन इंटीग्रल। तो ये बातें ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पे दिया है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, हम तो इजीली कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू दैट, आंसर तो है उसके क्योंकि हमें प्रूव दैट करना है ये। उसके बाद ये प्रॉब्लम मैंने दिया है कि फाइंड अ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट f of x equals to 1 upon 1 plus x square। ये तीनों भी प्रॉब्लम अच्छे से करो, इसका आंसर मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, आप लोग सॉल्व करके देखो। थोड़ा अलग प्रोसीजर है इसकी, पर फॉर्मूला वही यूज़ करना है आपको। नहीं आया तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर एक बार आप ट्राई करके देखो एंड ये प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल